السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ، سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کیریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی۔ یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس، تاکہ آپ نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ۔ اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن اور اسپاٹ اسسمنٹ کی سہولت۔ ساتھ ہی یو کے ورک پرمٹ، اسکلڈ ویزا، یورپ جاب سیکر ویزا اور لون اسسٹنس کے لیے بھی اسپیشل گائیڈنس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس، بیکویل کیک ہاؤس۔ ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمز الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. ٹیکساس میں تباہ کن سیلاب کے 5ویں دن ریسکیو آپریشنز جاری۔ سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی، 161 لاپتہ۔ غازہ میں ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، 16 جاں بحق، کئی زخمی۔ قطر میں سیز فائر کے لیے مذاکرات کا چوتھا دور۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کے حالات اور اسرائیل ایران جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر ہوا غور۔ ICC نے طالبان کے سپریم لیڈر اور افغانستان کے چیف جسٹس کے خلاف وارنٹ گرفتاری کیا جاری، لڑکیوں اور خواتین پر مظالم کا ہے الزام۔ ٹرمپ کی ولادیمیر پوٹن کو دھمکی کے بعد یوکرین پر رشیا کا بڑا حملہ، 700 ڈرونز اور 13 میزائلز داغے گئے۔ وزیراعظم نریندر مودی نمیبیا پہنچے، پرتپاک استقبال، افریقی ملک کی پارلیمنٹ سے خطاب۔
گجرات میں برج اچانک منہدم ہو گیا، 10 افراد ہلاک، 6 زخمی، گاڑیاں ندی میں گر پڑی۔ اور ملک بھر میں ٹریڈ یونینوں کی ہڑتال، ٹرانسپورٹ سروس متاثر، حکومت نے کہا بات چیت کے لیے ہیں تیار، منظور شدہ عہدوں پر بھرتی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا مطالبہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ٹیکساس میں 4 جولائی کو آئے تباہ کن سیلاب کے بعد ریسکیو آپریشنز 5ویں روز میں داخل ہو گئے ہیں۔ سیلاب میں اب تک 111 افراد ہلاک جبکہ 173 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ گورنر نے تصدیق کی ہے کہ 109 افراد سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 94 ہلاکتیں صرف کیر کاؤنٹی سے ہیں، جبکہ کیر کاؤنٹی میں 161 اور دیگر علاقوں میں 12 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ گورنر نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا اور صورتحال کو تاریخی تباہی قرار دیا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر نے ہنگامی پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک آخری لاپتہ شخص کو تلاش نہ کر لیا جائے۔ گواڈلیلوپ دریا کی سطح محض 45 منٹ میں 26 فٹ تک بلند ہوئی، جو 2 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، جس سے امدادی سرگرمیوں کو تقویت ملے گی۔ مقامی ادارے سینکڑوں والنٹیئرز کے ساتھ مل کر مسلسل سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے وزیر ٹرانسپورٹ کو برطرف کر دیا اور اس کے چند گھنٹے بعد ان کی لاش ماسکو کے باہر ایک پارک میں ملی۔ سر میں ایک گولی کا زخم تھا۔ مبینہ طور پر لاش کے پاس ایک پستول بھی پائی گئی۔ تحقیقات کرنے والے افسروں کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ سابق وزیر نے خودکشی کی ہے۔ ایک روسی اخبار نے رومن اسٹروائٹ کی خودکشی کو روسی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ قرار دیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ کے خطے کی صورتحال اور تبدیلیوں پر بات چیت کی گئی۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان اور وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بھی ملے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عباس اراغچی کی سعودی عرب کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں مفید رہی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور دیگر سعودی کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں نتیجہ خیز رہیں۔ ان میں علاقائی استحکام اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی حالیہ جنگ بندی، جس سے ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید تنازع ختم ہوا، کے بعد آگے بڑھنے کے راستے پر بات چیت شامل تھی۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے کہا ہے کہ فریقین نے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد بن سلمان نے سفارتکاری کے لیے سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ کیا اور امید ظاہر کی کہ جنگ بندی وسیع تر علاقائی سلامتی کے لیے حالات پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مملکت ہمیشہ سفارتی ذرائع سے بات چیت اور مسائل کے پرامن حل کی حامی رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیلی حملے کے خلاف سعودی عرب کے موقف اور خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ولی عہد کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس ملاقات میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بھی شریک تھے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ ان کے ملک کے وزیر دفاع بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہوئیں جب 2 ہفتے قبل ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نافذ ہوئی تھی۔ غزہ کے ریفیوجی کیمپس پر اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ چہارشنبے کی صبح سے اب تک 16 فلسطینی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں کم از کم 95 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے الشفا ہاسپٹل میں آج صبح فیول ختم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے انسانی ہمدردی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ایندھن کا بحران انتہائی نازک مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کو رہا کروا کر فلسطینی گروپ کو شکست دیں گے۔ نتن یاہو کے بیان پر حماس کا کہنا ہے کہ غزہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ قطر میں اسرائیل حماس بالواسطہ مذاکرات کا 4تھا دور آج متوقع ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر تنقید کے بعد ماسکو نے یوکرین پر ڈرونز کی بارش کر دی ہے۔ غیر ملکی
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के हुक्काम ने चारशंबे को कहा है कि अपने हमले के आगाज के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि 3 साल से ज्यादा अरसे से जारी जंग में रूस ने यूक्रेन पर गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइल्स दागे। बांग्लादेश में पिछले साल तलबा एहतजाज पर खूनरेज़ क्रैकडाउन की मंजूरी उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने दी थी। ये बात बरतानवी नशरियाती इदारे के इन्वेस्टिगेटिव यूनिट BBC की तस्दीक शुदा ऑडियो कॉल में सुनी जा सकती है। यह ऑडियो कॉल मार्च में लीक हुई थी। ऑडियो में शेख हसीना ने सिक्योरिटी फोर्सेस को तलबा के खिलाफ मुहल्लिक हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और कहा कि वो जहां भी नजर आए उन्हें वहीं गोली मार दी जाए। याद रहे कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में इंसानियत के खिलाफ जराइम की खुसूसी अदालत में मुकदमा चल रहा है और इस्तिग़ासा में इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को अहम सबूत के तौर पर पेश करने का इरादा रखती है। इन्वेस्टिगेटिव इदारे ने कहा है कि ऑडियो में किसी किस्म की एडिटिंग या छेड़छाड़ के शवाहिद नहीं मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुज़ाहरों में तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब शेख हसीना और उनकी जमात ने ऐसे तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल मुज़ाहरे कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ शुरू हुए थे, लेकिन बाद में मुल्कगैर तहरीक में बदल गए, जिसके नतीजे में 15 बरस बाद शेख हसीना को इक़्तिदार से हटा दिया गया था। नेपाल और चीन की सरहद पर दरियाए बूटे कोशी में सैलाब के बायस दोनों ममालिक को आपस में मिलाने वाला दोस्ती का पुल तबाह हो गया। नेपाल की पुलिस के मुताबिक उसके ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है, जबकि 57 अफराद को बचा लिया गया है। पुलिस ने मजीद बताया है कि उसकी ऑपरेशन अब भी जारी है और लापता अफराद की तलाश भी जारी है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रेडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नेपाल में कम अज़ कम 20 अफराद के लापता होने की इत्तला है, जिनमें 6 चीनी शहरी और 3 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब चीनी मीडिया ने नेपाल में 11 चीनी शहरियों के लापता होने की इत्तला दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी शहरी काठमांडू से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल में चीनी इमदाद से ज़ेर तामीर कंटेनर डिपो पे काम कर रहे थे। इमलाक का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी तफसीलात अभी जमा हो रही है। नेपाल और चीन के दरमियान बना ये पुल गिरने की वजह से नेपाल और चीन के दरमियान तिजारत भी मुतासिर हुई है, क्योंकि दरियाए बूटे कोशी दोनों ममालिक के दरमियान सामान की आमदरफ्त का एक अहम रास्ता था। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी फौजदारी अदालत का कहना है कि तालिबान हुक्मरानों ने ख़वातीन और लड़कियों को तालीम, राजदारी, ख़ानदानी ज़िंदगी और नक़्ल व हरकत समेत इजहार ख़याल, ज़मीर और मज़हब की आज़ादियों से बुरी तरह महरूम करके रख दिया है। आलमी अदालत का कहना है कि इस बात पर यकीन करने की बुनियादें मौजूद हैं कि तालिबान के आला तरीन रूहानी रहनुमा हैबतुल्लाह अक़वानज़ादा ने लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ सनफ़ी बुनियादों पर जुल्म व सितम करके इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया है। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC ने मंगल के रोज़ तालिबान के सुप्रीम लीडर और अफ़गानिस्तान के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इन दोनों पर अफ़गानिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन पर जुल्म करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत ICC का कहना है कि इस बात पर यकीन करने की बुनियादें मौजूद हैं कि तालिबान के आला तरीन रूहानी रहनुमा हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा और तालिबान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी ने लड़कियों ख़वातीन के ख़िलाफ़ सनफ़ी बुनियादों पर जुल्म सितम के साथ ही इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का इर्तिकाब किया। हैग में कायम अदालत ने इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गानिस्तान में इन जराइम का आगाज़ 15 अगस्त 2021 से हुआ, जब तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, और अब कम अज़ कम 20 जनवरी 2025 तक ये जराइम बरकरार रहे। इस दौरान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि तालिबान ने ICC के वारंट को बकवास करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि ICC का ये इक़दाम शरई क़वानीन के लिए मजबूत अज़्म और लगन को मुतासर नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी पड़ाव में नमीबिया पहुंचे। इन्होंने नमीबिया के सदर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नमीबिया एक काबिल भरोसा अफ्रीकी पार्टनर है, जिसके साथ हम 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नमीबिया की पार्लियामेंट से भी खिताब किया। हिंदुस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म का पुरतबाक इस्तक़बाल किया गया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ब्राज़ील में ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी।
हिंदुस्तान में हुकूमत की मुबैना अवाम और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। यूनियनों के मुताबिक 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर और किसान मुल्क गिर हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल की वजह से आम खिदमात और मामूलाती ज़िंदगी पर असर पड़ा है। चारशंबा 9 जुलाई को सुबह शुरू होने वाली हड़ताल के बाद से अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। ये आम हड़ताल मरकज़ी ट्रेड यूनियनों CTU के रहनुमाओं की अपील पर हुई है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि मजदूरों और किसानों ने मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बुलाई गई हड़ताल के मुतालबात की 17 नुकाती चार्टर की हिमायत की है। हुक्मरान जमात की तायदी भारतीय मजदूर संघ हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही है। उधर मरकज़ी वज़ारत लेबर का कहना है कि वो ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मजदूर रहनुमाओं ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने सहफरीकी मैकेनिज़्म को तबाह कर दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम हुकूमत से बेरोज़गारी के ख़ात्मे, मंजूर शुदा अहदों पर भर्तियों, मज़ीद मुलाजिमतों के मौक़े पैदा करने, मनरेगा कारकुनों के दोनों मुआवज़ों में इजाफ़ा और शहरी इलाक़ों के लिए इसी तरह की कानून साज़ी का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह वोटर लिस्ट खुसूसी नज़रसानी के नाम पर बिहार में असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च की क़यादत कर रहे राहुल गांधी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी पर बिहार असेंबली इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। गुजरात में महिसा ग्रंथी पर वाक़ पुल अचानक मुनहदिम हो गया, जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि पुल का एक हिस्सा अचानक गिरा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली 4 गाड़ियां भी नदी में गिर गईं। इन्होंने बताया कि अब तक 10 अफराद की लाशें नदी से निकाली जा चुकी हैं और 6 दीगर अफराद को बचाया गया। फिलहाल इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी बताया गया है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा जैक्वार राजस्थान के चूरू में गिरकर तबाह हो गया। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने जैक्वार लड़ाका तैयारा गिरने की तस्दीक की है। मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा राजस्थान के ज़िले चूरू के एक खेत में गिरा। वाक़े में दोनों पायलट हलाक हो गए। ये पिछले 3 माह में ऐसा दूसरा वाक़या है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आप ले हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही UK वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students.
Tom International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. टेक्सास में तबाहकुन सैलाब के 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। सैलाब में हलाकतों की तादाद 111 हो गई, 161 लापता। गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी, 16 जाँ बहक, कई जख्मी। कतर में सीज फायर के लिए मुज़ाकरात का चौथा दौर। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते के हालात और इसराइल ईरान जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर हुआ गौर। ICC ने तालिबान के सुप्रीम लीडर और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी किया जारी। लड़कियों और ख़वातीन पर मुजालिम का है इल्ज़ाम। ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन को धमकी के बाद यूक्रेन पर रशिया का बड़ा हमला, 700 ड्रोन्स और 13 मिसाइल्स दागे गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नमीबिया पहुंचे, पुरतबाक इस्तकबाल। अफ्रीकी मुल्क की पार्लियामेंट से खिताब। गुजरात में ब्रिज अचानक मुनहदिम हो गया, 10 अफराद हलाक, 6 जख्मी। गाड़ियां नदी में गिर पड़ी। और मुल्क भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासिर। हुकूमत ने कहा बातचीत के लिए हैं तैयार। मंजूर शुदा ओहदों पर भर्ती और रोजगार के मौके पैदा करने का मुतालबा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।